students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? This is class 8, chapter number 2, linear equation in one variable, exercise 2.4. Clear? This chapter, exercise 2.1, 2.2 and 2.3 we have already covered. If not, अगर आपने वो नहीं देखी है, so please go through that videos which are given in the description link, so that at least you first of all learn the concepts based on one by one exercise, so that you can solve this type of questions over here as well. If you wish, you can go for mostly 2.2 exercise also, because such type of, as the questions were asked in 2.2 exercise, same type of questions are there in exercise 2.4. So we will go for it. So first question of the exercise 2.4. See, anywhere you found a doubt or you found that something has not been understood, you can ask anytime in the comment section. Clear? So एक एक करके हम लोग question solve करेंगे. आपको कहीं पे भी problem है, you can comment, so that we can go on and we can discuss about it. First question is, Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. अमीना क्या करती है, एक नंबर सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है, मीन्स इट सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. सपोज अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर x एंड इट सब्ट्रैक्ट्स, शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम x. क्लियर? एंड शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करती है. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी सॉट. मतलब उन्होंने जो सोचा था, द नंबर विच शी थॉट, शी गेट्स द रिजल्ट 3 टाइम्स दैट नंबर इटसेल्फ. यानी x minus 5/2 into 8 equals to 3x. This is what question is saying. So first of all, let the number be p. Now according to the question, p minus 5/2 into 8 equals to 3p. Because question में already बोला हुआ है that number में से 5/2 subtract किया and she multiplies the result by 8, means she multiplies the result by 8, she gets 3 times the same number, so 3p. Now what we will do, we will one by one suppose solve the bracket. So 8 into p, that is 8p, and here minus 5/2 into 8, so 2 4s are 8, so minus 5 into 4, that is 20, that is also minus 20, so we get minus 20, and 3p as it is. Now what we will do, we will transpose 3p on LHS side and minus 20 RHS. So by transporting 3p on LHS and minus 20 on RHS, we get 8p minus 3p equals to 20. 8 minus 3, that is 5p equals to 20. Dividing both sides by 5, we get, means 5p upon 5 equals to 20 upon 5. 5 cancel, 5 4s are 20, so p equals to 4. We get p equals to 4. So the number which she thinks of is 4. The number which she thinks is 4. We get the answer. Clear? समझ में आया? Step by step follow करो और practice करते जाओ, you will surely get the answers. Now moving ahead for the question number 2. So question number 2 is, a positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर है जो दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. See, if 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? So let first of all one number be x, so second number is 5 times, so 5x. If 21 is added, देखो this is x, this is 5x, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 5x होगा. If 21 is added to both the number, मतलब suppose x plus 21 and 5 plus 21, दोनों 5x plus 21 दोनों में 21 ऐड करते हैं, then one of the new number becomes twice the other number. तो obvious ही बात है, ये वाला बड़ा नंबर होगा, so ये जो नंबर है that is twice the first number. So जो नंबर नए मिले, so now according to the question, twice x plus 21 equals to 5x plus 21. क्योंकि question में बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ना, 21 is added to both, so x plus 21 and 5x plus 21 दोनों में हमने 21 ऐड कर दिया. Then one new number becomes twice the other new number. तो ये वाला जो नया नंबर obviously बड़ा होगा, that is twice the
ओरिजिनल, दोनों में एक नंबर दूसरे नंबर के डबल होगा. सो दिस इज हाउ व्हाट वी गॉट हियर. 2 in bracket x plus 21 equals to 5x plus 21. Now 2x plus 42, 2 into x that is 2x plus 2 into 21 that is 42 equals to 5x plus 21. Transposing 2x to the RHS, 2x RHS side and 21 LHS side means 2x यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा और 21 इस तरफ आएगा LHS साइड में तो नेगेटिव. सो 42 minus 21, 42 minus 21 equals to 21 and 5x minus 2x equals to 3x. So this what we get, 21 equals to 3x. Now dividing both sides by 3. So 21 upon 3 equals to 3x upon 3. So 3 cancel and 3 sevens are. So x we get that is 7. So one number is 7. So number 1 equals to 7 and number 2 that is 5x equals to 5 sevens are 35. So दोनों आंसर आपको मिल गए. Moving ahead for question number 3. Sum of two digit number is 9. Sum of the digits of two digit number is 9. मतलब सपोज दो डिजिट्स हैं x और दूसरा जो है नंबर, उन दोनों का सम जो है 9 है. तो अगर एक x है तो दूसरा जो नंबर होगा दैट इज 9 माइनस x. जैसे एग्जांपल है, लेट वन डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y एंड दोनों का सम दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 आ रहा है. सो y इक्वल्स टू 9 माइनस x. ऑब्वियस सी बात है. तो one digit is x and another digit is 9 minus x. So let is given that sum of two digit is 9, let the digit at unit place be x. So the digit at tens place will be 9 minus x. अब जैसे नॉर्मल एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 98, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. क्लियर. सो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 into 9 plus 8, 9 tens are 90 और प्लस 8 करेंगे तो 98. तो हमको आंसर सेम मिलेगा. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ यूनिट प्लेस को हम ऐड करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे वंस प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स है. तो नंबर हमारा जो होगा दैट इज 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स होगा. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली टेंस डिजिट पे 9 माइनस एक्स है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस वंस डिजिट वाले नंबर को ऐड कर दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स. अभी टेंस डिजिट पे क्या है 9 माइनस एक्स और वंस डिजिट पे एक्स है. इंटरचेंज अगर करते हैं हम लोग तो वंस डिजिट पे आ जाएगा 9 माइनस एक्स और टेंस डिजिट पे आ जाएगा एक्स. सो यहाँ पे जो नंबर था ओरिजिनली दैट इज 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस एक्स और ये वाला नंबर जो होता है हमारा दैट इज 10 इंटू एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस पे एक्स है, प्लस 9 माइनस एक्स. क्लियर. When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. Greater than the original number by 27. What is the two digit number? अब ये जो नंबर हुआ इंटरचेंज होने से वो इस नंबर से 27 ज्यादा है. क्लियर. इस नंबर से 27 ज्यादा है. सो वी कैन राइट इसी नंबर में प्लस 27 लिख दो. सो 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस एक्स प्लस 27 इक्वल्स टू 10x प्लस 9 माइनस एक्स. सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. Thus the two digit number is 10 9 minus x plus 1 plus sorry x, क्योंकि 10th digit पे 9 minus x है. If we digit the reverse, we reverse the digit. अगर digits को reverse किया जाए तो जो reverse number है वो हो जाएगा 10x plus 9 minus x. वो मैंने बताया क्योंकि जो digit reverse होता है तो 10th place पे आ जाता है x और unit place पे आ जाता है 9 minus x. Clear? Now according to the question में क्या बोला, ये वाला जो नंबर हमको मिला है that is 27 greater than this means plus 27 अगर हम लोग लिखें इसके अंदर that is so 10x plus 9 minus x, 10x plus 9 minus x equals to 10 in bracket 9 minus x plus 27, क्योंकि 27 ज़्यादा है ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा. अब तो सिंपल ब्रैकेट खोलो, इम्प्लाइज यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10x plus 9 minus x और इक्वल टू 10 इंटू 9 दैट इज 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27. क्लियर. सो देखो 10x माइनस x यानी 9x प्लस 9 90
माइनस 10x प्लस एक्स प्लस 27, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद माइनस 10x प्लस 10x यानी 9x हो जाएगा। 90 प्लस 127 दैट इज 117, सो 9x प्लस 9 एंड 117 माइनस 9x। अब क्या करना है, ट्रांसपोज 9x ऑन LHS एंड 9 ऑन RHS। तो ट्रांसपोजिंग minus 9x to the LHS and 9 to the RHS, we get 9x plus 9x equals to 117 minus 9. So 18x equals to 108, क्योंकि 117 में से 9 माइनस करेंगे तो 108. So x on डिवाइडिंग करना है, ध्यान रखना 18 को से डिवाइड किया जाएगा 108 को भी, तो दैट इज 8 से डिवाइड करना तो 18 कैंसिल, 18 6 जा, so x equals to 6. Therefore the number what we obtained, जो 2 डिजिट नंबर कौन सा था हमारा 2 डिजिट नंबर 10, ये वाला रिवर्स डिजिट करने वाला नहीं। सो 10 इन ब्रैकेट 9 माइनस 6 प्लस 6, तो 10 माइनस 9 माइनस 6 मतलब 3, तो 30 प्लस 6, तो आंसर क्या है हमारा नंबर जो था दैट इज 36। सो दस 2 डिजिट नंबर इज 36। कैसे आया 36, मैंने आपको बताया, आपको x की वैल्यू इसके अंदर रखनी होगी, रिवर्स डिजिट के अंदर नहीं, जो ओरिजिनल नंबर होता है 10 ओरिजिनल नंबर उसके अंदर रखना है। क्लियर? सो दिस इज हाउ ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब 2 डिजिट नंबर है जिसमें से एक डिजिट अगर x है तो दूसरा 3x है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड add the resulting number to the original number, you get 88. मतलब see, first of all let the unit place number be x and tens place be 3x। तो इसमें 2 नंबर्स हो सकते हैं। ओरिजिनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज हम लोग लेते हैं, ये टेंस प्लेस पे लिया है तो 10 इंटू 3x प्लस x, और अगर रिवर्स इंटरचेंज करते हैं हम लोग, भाई टेंस प्लेस पे हम लोग x को लेते हैं और इसको वंस प्लेस पे लेते हैं और दोनों को एडिशन करते हैं तो आंसर वुड बी 88। ऐसा बोला हुआ है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कौन सा हुआ ये वाला, और इंटरचेंज करने पे हमको मिला ये वाला, सो दोनों का एडिशन हमको 88 मिलेगा, दैट वी विल बी सॉल्विंग। thus the 2 digit number is 10 in bracket 3x plus x. if we interchange the digit the number becomes 10x plus 3x. clear? now अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं 10 इन ब्रैकेट 3x प्लस x एंड 10x प्लस 3x, सो आंसर इज 88। क्लियर? सो वो हम लोग देखते हैं, 10 इन ब्रैकेट 3x प्लस x, 10x प्लस 3x इक्वल्स टू 88, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 30x, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 1 14x इक्वल्स टू 88, सो 44x इक्वल्स टू 88। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 44 वी गेट x इक्वल्स टू 2। ऑब्वियसली बात है 44 से डिवाइड करोगे तो 44 2 88, सो वी गेट x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू मिल गई तो हमारे दोनों नंबर्स x में क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे कोई फिक्स नंबर बोला तो नहीं कि कौन सा नंबर किधर है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन आल्सो, x इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन आल्सो। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो 10 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज 63, और अगर इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो 60 प्लस 10 इंटू 6 दैट इज 60 प्लस 6, सो वी गेट 66। दोनों ही नंबर पॉसिबल है, वो आप उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आपको रखना होगा। सो वॉट एवर यू पुट, देखो यहाँ पे वैल्यूज रखनी 2, ये ध्यान रखना 2 रखनी है, मैंने 6 रख दिया, 2 रखना है। 10 इंटू 3 2 6 प्लस 2 दैट इज 62, और यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 23, 3 2 6 सॉरी 26। सो hence the 2 digit number 10 in bracket 3x plus 2 equals to 10 in bracket 3x plus 2, तो x की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 10s are 60, 60 plus 2 is 62। now note that the 2 digit number can also be found in the reverse digit, so one more number possible is 26, क्यों रिवर्स करने पे भी वही नंबर आएगा, so 62 का रिवर्स क्या होगा 26, तो that number also it is valid। this was question number 4। now moving ahead with question number 5। Sobo's mother's present age is 6 times Sobo's present age।
सोबो की मदर की प्रेजेंट एज, तो लेट अज्यूम दैट सोबोस प्रेजेंट एज इज x एंड सोबोस मदर एज इज 6x, बिकॉज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वही लिखा हमने. सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. मतलब 5 साल बाद, तो सोबोस एज आफ्टर 5 years दैट विल बी x + 5. ऑब्वियसली बात है, आपकी अगर 10 years है राइट नाउ, तो 5 years बाद आपकी 15, 10 + 5 15. तो हियर सोबो की एज x थी, तो 5 साल बाद x + 5 वुड बी. It is given that Sobo's age year from now will be 1/3 of his mother's present age. तो मदर की 5 years बाद क्या एज होगी, 6x + 5 होगी मदर की भी. So it is given that Sobo's age 5 year from now will be 1/3 of his mother's present age. Means 5 साल बाद सोबो की जो एज होने वाली, that is x + 5, that will be equal to 1/3 of his mother's age from right now. Present में जो है तो 6x का 1/3 होगा. So same equation would be x + 5 equals to 1/3 of 6x. So x + 5 equals to 2x, because 3 2s are 6 होता तो 2x. Now what we will do, x को हम लोग RHS साइड ले जाएंगे, तो ट्रांसपोजिंग x to RHS, 5 equals to 2x minus x implies x equals to 5. Hence Sobo's present age is x equals to 5 years. तो सोबो की प्रेजेंट एज हमको किसकी फाइंड करनी थी, दोनों की फाइंड करनी है अभी. तो सोबो की प्रेजेंट एज 5x, तो सोबोस मदर विल बी 6x, यानी 5 6 30 years. समझ में आया. सोबो की प्रेजेंट एज x, मदर 6 times तो 6x. सोबोस एज फ्रॉम 5 years नाउ, 5 साल बाद कितनी होगी, तो अगर अभी x है तो 5 साल बाद x + 5. सो अकॉर्डिंगली वी आर पुटिंग दी फॉर्मूलाज जो भी इक्वेशन में बोला हुआ है कि दैट 5 years फ्रॉम नाउ सोबोस एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, तो 1/3 ऑफ 6x. So you will get x equals to 5, that is Sobo's age and Sobo's mother age, you will get it. Now question number 6, we are going to, for question number 6, read the question. कहीं पे भी doubt है, you can ask it out, otherwise read the question carefully. This is a narrow rectangular plot reserved for school in Mahuli village. The length and the breadth of the plot are in ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? See, first of all, length and breadth will be 11x and 4x, क्योंकि 11:4 दिया हुआ है, तो 11x and 4x. And it is given that cost is 75,000. इन्होंने क्या बोला, पूरे पेरीमीटर की फेंसिंग अगर करनी है तो 75,000 होगा. और पर मीटर कितना कॉस्ट है, पर मीटर इट इज 100, सो डिवाइड बाय, अगर मैं 100 करूँ, 75,000 डिवाइड बाय 100 मीन्स 750 उसका पेरीमीटर है. जो पूरा प्लॉट है या रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका जो पेरीमीटर है दैट इज 750. सो हियर वी विल गो विद fencing is done on the boundary of the plot, so we need to calculate its perimeter. Perimeter of rectangle equals to 2 into length plus breadth. Total cost of the fence of the plot is rupees 75,000 equals to 100 into perimeter of plot. So equation becomes, अब देखो 100 into perimeter of plot, so 100 into perimeter, 2 in bracket length. देखो इन्होंने क्या बोला है, cost हमको दिया हुआ है 75,000 equals to 100 into perimeter हमारा क्या है 2, 11x plus breadth 4x, बस इसको लिख दिया. सो सेम हमारा यहाँ पे बन गया. अब इसको स्लोली अगर हम लोग ओपनिंग करते हैं तो 2 into 100 that is 200 in bracket 11x plus 4x 75,000. clear. Now what we will do is मल्टीप्लाई कर दो सिंपल फॉर्म में डायरेक्टली. 11x plus 4, see 200 into 11 plus 4 that is 1500, 15x, 11 plus 4x 15x equals to 7500. सो इसको और अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, सो 3000x equals to 75000. clear. So this is 200 into 15x equals to 75,000 to 3,000. So dividing both sides by 3,000 we get x equals to 25. Means x की वैल्यू मिली. Now length, hence length of the plot equals to 11x that is 275. Breadth of the plot is 4x that is 100 meter. यानी प्लॉट की लेंथ कितनी हो गई 275 मीटर एंड प्लॉट की ब्रेथ कितनी हुई 100 मीटर. So this is how the calculation is done, one by one, step by step. You can go it out
कैलकुलेट करो, आपको और इजी लगेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter, and trouser he costs for 50 per meter, and trouser materials cost him rupees 90 per meter. For every 3 meter of shirt material he buys 2 meter of the trouser materials. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? से पहले क्वेश्चन समझना कि उन्होंने शर्ट का और ट्राउजर मीन्स पैंट, एक तरह से शर्ट और पैंट के क्लोथ्स खरीदे. सपोज एक्स मीटर शर्ट के लिए खरीदा, वाई मीटर ट्राउजर के लिए खरीदा. और कॉस्टिंग क्या थी? 50 रुपीज़ फॉर शर्ट, सपोज 50 रुपीज़ फॉर शर्ट एंड 90 रुपीज़ फॉर ट्राउजर. अब वो बंदे ने क्या किया, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर. मतलब अगर इसमें से 3 मीटर का कपड़ा, जो टोटल शर्ट का कपड़ा उसमें से 3 मीटर का कपड़ा एक शर्ट के लिए जा रहा है, वैसे ही पेंट में वाई मीटर का मीन्स पूरे ताक में से 2 मीटर का कपड़ा जाता है. क्लियर? सो दे बोथ आर इक्वल. एवरी 3 मीटर्स ऑफ शर्ट शी बाइज या ही बाइज 2 मीटर ऑफ पैंट ट्राउजर्स का क्लोथ यूज करता है. सो हमारा इक्वेशन बनता है x/3. एज पर द क्वेश्चन x/3 इक्वल्स टू y/2, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ जो भी उन्होंने शर्ट मटेरियल लिया है उसमें से 3 मीटर जा रहा है तो उतने ही शर्ट्स बनेंगे, और जितने वाई मीटर का लिया है ट्राउजर्स के लिए उसमें से 2 मीटर एक पैंट में जा रहा है तो जितने शर्ट्स बनेंगे उतने ही पैंट बनेंगे. ऑब्वियस सी बात है, शर्ट एंड ट्राउजर का दोनों का चेंज तो होगा नहीं. सो ये इक्वेशन बनता है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं, दस ट्राउजर मटेरियल भी x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू y/2, तो हमारा ट्राउजर का मटेरियल मतलब y इक्वल्स टू 2x/3. हमने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी गेट y इक्वल्स टू 2x/3, मतलब ट्राउजर का मटेरियल हमको मिल गया. अब मेन बात, ये सब तो कैलकुलेशन हुआ कितना हमने शर्ट का मटेरियल लिया और कितना हमने ट्राउजर का मटेरियल लिया. नाउ ही सेल्स दी मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. मतलब शर्ट के अंदर 12% प्रॉफिट करता है, ट्राउजर के अंदर 10% प्रॉफिट करता है. हिज टोटल सेल इज रुपीज 36,600. अब पहले हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करें. प्रॉफिट का कैलकुलेशन क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एट 12% प्रॉफिट. 12% प्रॉफिट मतलब जितना उसका प्राइस है x इंटू 50, क्योंकि इतना मीटर है और 1 मीटर का 50 रुपीज़ है उसका शर्ट का, प्लस उसमें प्रॉफिट 12% प्रॉफिट ऐड करना है. तो किसका 12% होगा? 12% ऑफ, ऑब्वियस ही बात है, जितना शर्ट है जो भी मटेरियल है उसका 12% प्रॉफिट ऐड करेंगे. सो 50x आएगा. सो हियर 50 प्लस 12/100 इंटू 50. सो 50 का एज इट इज 50, 12/100 तो 50 2 ज़ा 100, तो 12/2. सो 50/6, 50 प्लस 6 इक्वल्स टू 56 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस शर्ट का, एक शर्ट के मीटर का, यानी जो भी हम लोग बेचते हैं, दैट इज 56 रुपीज़ हुआ. नाउ सिमिलरली ट्राउजर में 10% प्रॉफिट है. सो 90 प्लस 100 मीन्स 10/100, 10% है. सो 90 रुपीज़ तो उसका है ही, उसमें सेलिंग प्राइस ऐड करना है तो 10% ऑफ 90 होगा. सो 0 0 कैंसिल, तो 90 प्लस 9 दैट इज 99. सो ट्राउजर का हो जाएगा 99. Hence, the equation for selling becomes, जो सेलिंग का इक्वेशन है भाई, जितना ट्राउजर का कपड़ा है, सिंपल सी बात है, 56 रुपीज़ इंटू एक्स प्लस 99 रुपीज़ इंटू वाई होता है. तो वाई क्या है हमारा? 2x/3 इक्वल्स टू, ये सबका कॉस्टिंग कितना है? 36,600. देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट स्टेप बाय स्टेप आप जाइएगा तो यू विल गेट द आंसर. सो 56, जितना मटेरियल शर्ट के x मीटर थे उसका एक शर्ट वो बेचता है 56 रुपीज़ में, तो x मीन्स 1 मीटर कपड़ा बेचता है 56 रुपीज़ में, तो x इंटू 56. और एक कपड़ा जो नॉर्मली y का, जो जितने भी y हमने लिए हैं उसको बेचते हैं 99 रुपीज़ में. सो 36,600, सब जगह x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारी है 2x प्लस अपॉन 3, तो वो रख दिया. नाउ x अप इंटू 50 यानी 56x प्लस 2x
into 3 into 99. So 333 are 99, ये 99 है, 333 are 99 equals to 36,600. अब क्या होगा, 56x plus 66x, 56x plus 66x equals to 36,600. इन दोनों को ऐड करो. So 56 plus 66x equals to 36,600, यानी 122x 122x equals to 36,600. इसको डिवाइड करोगे आप 36600 को 122 से डिवाइड करोगे तो 366 और 0 2 आया तो 2 0 हम लोग डायरेक्टली ऊपर 300. सो x इक्वल्स टू 300. यानी शर्ट का जो कॉस्टिंग था, शर्ट हम लोग लेके आए टोटल 300. So similarly, therefore trouser material bought equals to 2x upon 3. 2 into x मतलब 300 upon 3, तो 300 that is 200 मीटर. भाई शर्ट का लेके आए 300 मीटर और ट्राउजर का 200 मीटर हम लोग कपड़ा लेके आए हैं. Now moving on to the question number 8. Half of a herd of a deer are grazing in. भाई एक फील्ड है जिसके अंदर डियर, इधर उधर बहुत सारे डियर है. अब कितने डियर है वो बताया नहीं हमको, वो फाइंड करना है. हाफ ऑफ द हर्ड्स ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो पहले हम लोग लिख दें नंबर ऑफ डियर भी x, हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मींस x/2 एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग. अब देखो हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं जितने थे उसमें से, तो बचे कितने, हाफ ही बचे. नाउ ओनली हाफ रिमेन, दैट इज हाफ 1 x/2. उसके 3/4 जितने हाफ बचे थे उसके 3/4 क्या कर रहे हैं, 3/4 रिमेनिंग प्लेइंग नियर द लेक. यानी 3/4 मतलब 3x upon 8 आ गया. सो नाउ 3/4 ऑफ रिमेनिंग प्ले नियर बाई, दैट इज 3/4 upon x/2 इक्वल्स टू 3x/2, 3x/8. तो 3x/8 जो डियर्स हैं वो लोग खेल रहे हैं. अब इसमें से जो 9 जितने भी बचे हैं, जैसे x/2, अब कितने बचे हैं वो 9. इट इज सेड दैट रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर. मतलब हाफ में से जो बचे थे, मतलब हाफ तो चले गए ग्रेजिंग के लिए, हाफ में से 3/4 चले गए खेलने के लिए, मीन्स 3x upon 8 चले गए फॉर प्लेइंग. सो बचे कितने, रेस्ट आर ओनली 9. जो बचे दैट इज 9. सो इक्वेशन बिकम्स x/2 minus 3x upon 8 equals to 9. सो इसको अब सॉल्व करें. x/2 minus 3x upon 8 equals to 9. सो x/2 मीन्स 8 है तो हमारा एलसीएम होगा 4 मीन्स 8 सॉरी, तो 2 4 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 माइनस 3x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9. सो 4x माइनस 3x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9. तो x अपॉन 8 इक्वल्स टू 9. नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 8 बोथ द साइड वी गेट x इक्वल्स टू 72. दोनों साइड में 8 मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं, x अपॉन 8 इंटू 8 equals to 9 into 8. So 8 cancel, तो 9 8s are 72. Therefore there are 72 deers in a herd. मतलब पूरे ग्रुप के अंदर 72 deers थे, जिसमें से आधे जो थे ग्रेजिंग कर रहे थे, जितने बचे थे उसके 3/4 खेलने चले गए और बाकी के जो 9 थे they are drinking water. Yeah. So this is how it is done. Now question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is 54 years old. He is 54 years older than her. Find their present age. A grandfather is, let the age of daughter be x and grandfather age be x plus 54 because 54 है. Grandfather is 10 times older than his granddaughter. मतलब जो grandfather है, जैसे suppose 54 is 10 times older than daughter, मतलब 10x is equals to 10x. बस सिंपल यही इक्वेशन है. ऑल्सो ग्रैंडफादर इज 10 times older than his daughter. सो x plus 54 equals to 10x. अब क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज कर देंगे RHS साइड. सो 54 equals to 10x minus 9. 54 equals to 9x. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9 वी गेट, हमने क्या किया यहाँ पे शो नहीं किया, बट डिवाइडिंग डायरेक्टली बोथ साइड बाई 9, दैट इज 9x अपॉन 9. So 9 9 cancel, 9 6 are 54. So we get x equals to 6. Therefore,
ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज 6 ईयर एंड ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज देयर इज 6 + 54 यानी 60 ईयर्स. सो डॉटर की ग्रैंड डॉटर की एज हो गई 6 ईयर्स और ग्रैंडफादर की एज हो गई 6 + 54 दैट इज 60 ईयर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Aman's age is 3 times his son's. 10 years ago he was 5 times his son. देखो अभी की प्रेजेंट एज ऑफ अमन's son is x years and Aman's age will be 3x. 3 times बोला हुआ है. Now 10 years ago Aman's son age would be x minus 10 and Aman's age would be 3x minus 10. Apostrophe s would be there, clear? x minus 10 and 3x minus 10. What is said? 10 years ago he was 5 times his son age. मतलब 10 years जो एज है according to question. So x minus 10 का 5 times अगर करते हो तब जाके 3x minus 10 होता है. फिर slowly हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे. By opening the bracket 5x minus 50 equals to 3x minus 10. Now transposing 3x to the LHS and minus 550 to the RHS. So we get 5x minus 3x and minus 10 plus 50. So minus 10 plus 50 कितना होता है 40. So 2x equals to 40. Now dividing both sides with 2. 2x upon 2 equals to 40 upon 2. So 2 cancel, 2 20s are. So x equals to 20. So Aman's son age is 20 and Aman's age is 3x means 3 20s are 60 years. समझ में आया? अमन के लड़के की एज हो गई 20 और अमन्स एज इज 63x दैट इज 3 into 20 दैट इज 60 years. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखो मत. मैथ्स में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. सो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो. खुद पहले देखो, फिर नोट डाउन करो, फिर बिना देखे कोशिश करो. फिर कहीं प्रॉब्लम है देन अगेन कम टू वॉच द वीडियो. और फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन सॉल्व इट आउट. Thank you very much.